Right now we are starting inequalities, in which you have got three exercises. Level B is the topic which again you will see in a chapter called linear programming in class 12. Okay, in section C you have three sections A, B and C. Section C में एक chapter है linear programming, उसमें 11B का concept चाहिए. Fine. If suppose according to your respective school teacher teaching the subject, if they are saying that it's not in their syllabus in class 11, fine, not a problem. We will do first 11A and 11C. But out of these two things, I'm going to start with 11C first. 11A is just the repetition of the sums which you have done in junior classes. So today we are going to start 11C first, then 11A, and then finally 11B if you want. I will just do because it is very simple topic. The most important topic is 11C. So I'm starting with 11C, and 11C से एग्जाम में आता है, तो याद रखना 11C से आएगा या तो क्वाड्रेटिक इलास्टिक एक्सरसाइज से आएगा, ये दो काफी इंपॉर्टेंट है. So I'm beginning with 11C. So that's why I said to you that this is a very simple and short topic, so that's why I'm beginning with this first. So the first question I'm taking is number 1, and the question is x square minus 4x plus 3 less than 0. Okay, just note down here everyone. X square minus 4x plus 3 less than 0 is the question, and you have to find out all values of x. Listen here, all possible values of x for which this inequality is true. Means for you have to find out all possible values of x for which the value of this expression is less than 0. Okay everyone, for which the value of this expression is less than 0. So what I'm going to do is, first of all, as you know that we have to make right hand side equals to 0 first. We have to keep right hand side equals to 0. तो राइट हैंड साइड को 0 रखने के लिए, मतलब अगर मान लो यहाँ पे 2 होता या 4 होता तो पहले हम उस टर्म को लेफ्ट में लेके आ जाते. As you have already on the right hand side 0, so let us factorize left hand side. So just do middle term factorization. So we have x minus 3 is left, minus 1, x minus 3. What is common in both these expressions? It is x minus 3. So what is left? X minus 1. After factorization is over, so I repeat once again, step number 1. मैं यहाँ कंप्लीट नहीं किया, पहले मैं एक बार रिपीट करता हूँ. स्टेप नंबर 1, पहले राइट हैंड साइड को 0 बनाना. मतलब अगर राइट साइड में कोई भी टर्म है तो क्रॉस मल्टीप्लाई उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देना. सेकंड, लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना. फैक्टराइज करने के बाद जो रिजल्ट है इसका हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना. क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? All those values of x for which the value of this expression, the value of this factor is equal to 0. So x minus 3 is equal to 0 for which value of x? It is equal to 0 for the value of x equals to 3. X minus 1 is equal to 0 for which value of x? It is x equals to 1. Alright everyone. So we find that x का value 3 put करेंगे यहाँ पे तो ये पूरा expression 0 हो जाएगा. x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा. सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर x equals to 3, 1. 3, 1 are the critical points. Okay everyone, 3, 1 क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स है. अब देखो इस क्रिटिकल पॉइंट्स को एक लाइन पे अरेंज कर देना इन असेंडिंग ऑर्डर. जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है उसको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लाइन पे अरेंज कर देना. अरेंज कर दिए. अब देखो ना, ड्रॉ हेल्प बॉक्स. यू याद होगा तुम लोगों की मैंने बताया था क्वाड्रेटिक में भी एक हेल्प बॉक्स बना लेना, HELP हेल्प बॉक्स. इस हेल्प बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू के जो राइट साइड में है उसके लेफ्ट में, ये इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड में जितना फैक्टर्स है उस फैक्टर्स को यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कॉलम्स में. So we have got two factors, x minus 3 and x minus 1. तो इस दो फैक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कॉलम्स में. ठीक है, जितना भी फैक्टर्स होगा उतना कॉलम्स बनाना. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखो, एक बार हम लोग x का वैल्यू 1 से लेस लेंगे. टेक एनी वैल्यूज ऑफ x लेस देन 1. लेट्स टेक 0.
What is 0 minus 3? It's minus 3. It's a negative, so put negative sign here. 0 minus 1 is negative. What is negative into negative? It is positive. It means that if you put any values of x less than 1, अगर हम 1 से छोटा यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करें तो इस पूरा इनइक्वालिटी, इस पूरा एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा. थिंक ऑफ एनी नंबर बिटवीन 1 एंड 3. 1 और 3 के बीच का कोई भी एक नंबर सोचना. जैसे मान लेते हैं 2. यू कैन think anything which is between 1 and 3. 2.1 also, 2.9 also, anything. Now 2 minus 3 is negative, 2 minus 1 is positive. Negative into positive is negative. Alright? It means that if you put anything, any number, any values of x between 1 and 3, 1 नहीं, 3 नहीं, 1 और 3 के बीच का, इस expression का जो sign होगा, जो result आएगा, that will be every time negative. Now think of any number more than 3. Let's take 4. If I take any number, any values of x more than 4, let's take 5. So what is, so if I take like more than 3, let's take 4. Okay, कोई भी values ले सकते हैं हम लोग. So 4 minus 3 is 1 positive. 4 minus 1 is 3, it is again positive. What is positive into positive? It is positive. It means that 3 से बड़ा कोई भी value ले लो. 3, I mean 4, 5, 6, 7, 7.1, 7.2, anything. And if you put here in this inequality, then the left hand side will be always positive. मतलब ये positive होगा हमेशा. Okay? It means that 1 से छोटा कोई भी value put करेंगे तो result हमेशा positive होगा. 1 और 3 के बीच में कोई भी नंबर पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होगा. 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा? उसका मतलब किसका? which किसका रिजल्ट? yes, किसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा? रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज विल बी पॉजिटिव. 1 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा. 1 से छोटा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा. 1 पुट करने से ये एक्सप्रेशन 0 होगा. 3 put करने से ये expression भी zero हो जाएगा. So this way we have seen that this expression is less than 0. That is less than 0 means you know that मैंने जब quadratic बताया था तब मैंने पढ़ाया था greater than 0 means identified by positive sign. Any number less than 0 is identified by negative sign. Are you understanding my point? So हम लोग को x का वो सारा वैल्यू चाहिए जिससे इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है x का वैल्यू x पुट करने के बाद यहाँ पे इस पूरा का जो रिजल्ट है वो लेस देन 0 होना चाहिए. लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होना चाहिए. तो कहां से कहां तक बीच में होगा? x का वैल्यू मोर देन 1 पुट करने से और लेस देन 3 पुट करने से. Therefore the required solution is x more than 1, less than 3. This is the answer. Copy it down first. And if you have anything to ask, you can ask it. If anyone here in the class is having any doubt in this particular sum, you may ask. Okay, you can unmute your device and you are free to ask. Okay, I know that those who have already completed quadratic equation will have less doubt, but then also it doesn't imply that अगर doubt आएगा तो अभी पूछेगा नहीं, ये सोच के कि मैंने बोल दिया सर. Okay, please make sure that you clear your doubts. Yes. Okay, I'll share. Now, anything regarding this topic, anyone is having any doubt? Now, I'll just give you one question. You will try that. Okay. तो एक बार मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो सबको. So the question is, so they're from the book only. So everyone try this sum. Question number 3.
x square plus x minus 6 greater than equal to 0. I expect from each and everybody in the class to complete this sum. Okay, ये सारा कोई करेगा, कोई फटाफट कंप्लीट करो ये वाला sum. Good, very good. And just I'll give you this answer, like, and just check, verify with your answer. You all have got books, so I don't think there will be problem. But then also I'm giving the answer. X is less than equal to minus 3 or x is greater than equal to 2. Now, I hope everyone is done. किसी को ये सम मुझे करना नहीं पड़ेगा किसी के लिए बोर्ड पे anyone? Okay, anyone can demand if you want me to do this sum. ठीक है, जिसका हो गया है अच्छा ओके ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ये वाला सम. देखो सबसे पहला स्टेप ऑन द राइट हैंड साइड. It should be right hand side should be 0. If you don't have 0, if you have any other term, shift it on the left hand side. Please do not cross multiply. Inequalities में cross multiply मत करना. I'll explain it later on. जब आएगा वैसा sum तो. So now let us factorize. But one more thing before factorization, please make sure that the coefficient of highest power of x should be positive. अगर negative है तो negative मत रखना. जैसे मान लो for example you have minus x square minus x less than equal to 0. तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे. तो लेफ्ट और राइट अगर दोनों तरफ अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x square plus x, but the sign will change from less than to greater than. Why? The question is why. Just note down. Suppose 6 is minus 6 is less than minus 2. Yes, it is true. Minus 6 is less than minus 2. But if I multiply minus sign both sides, this will become plus 6, this will become plus 2. Is 6 less than 2? No, it's not true. So in inequality, whenever we multiply minus sign both sides, anyway, I mean, in order to remove this minus sign, eliminate this minus sign, or किसी भी तरीके से अगर हमको multiply करना पड़े, तो हम inequality का sign change करेंगे. Clear? That's why it is changing. ना ऐसा सिचुएशन तो इस समय नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया अगर ऐसा होता तो. ना तो सबसे पहले x का हाईएस्ट पावर का साइन पॉजिटिव होना चाहिए. यहाँ पे पॉजिटिव है. नाउ लेट अस फैक्टराइज. I'm sorry. Yeah, I'm sorry. करते हैं. So the critical points are, you know that critical points means those points for which the value of these individual factors is equal to 0. तो ये किस पे 0 होगा x का? -3 पे.
Therefore, the critical points are x equals to -3 and 2. These are the two critical points. अब इस critical points को हम लोग arrange करेंगे एक number line पे. उसके बाद ये जो भी फैक्टर्स है, ये जो फैक्टर्स है, इस फैक्टर्स को हेड बॉक्स पे जितना भी फैक्टर्स है उतना कॉलम बनेगा. यू नो दैट. So you've got two factors, so I'm making two columns. I'll take any values of x less than -3. Let's take -4. Just write down the sign part. Multiply and then write down the result. Let's take anything between -3 and 2. Let's take 0, positive, negative. Let's take anything more than 2. Let's take 3, positive, positive. It means that -3 से छोटा पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव. Now, we need all those values of x for which the value of this expression is more than 0, that is positive, and equal to 0. So you know that equal to 0 is at -3 and 2, because these are the critical points. At this point only this expression will be 0. Positive किस पे होगा? Positive -3 से छोटा और 2 से बड़ा करते हैं. For the required solution is x less than equal to -3, less than equal to -3, or x more than equal to 2. जिसका डाउट था लाइन में क्लियर हुआ? Yes. Now we'll do 5, 8. Okay. Now we'll do 5, 8 and 9. 3 sums पहले. उसके बाद फिर लगभग हो जाएगा. उसके बाद 5, 8 and 9. Then copy first. I'll show you number 5, then 8 and then number 9. I think everyone is copied. Now, question number 5. So the question is x square minus 6x plus 9 greater than equal to 0. Means you have to determine all those values of x for which the value of this expression is greater than equals to 0. Means it will be more than equal to 0 means it will be either 0 or positive. Okay, now see, let us factorize. Okay, we can write this as x minus 3 ka whole square. Okay, everyone. Now listen here. If you see the critical point is only 1 and that is 0, 3, sorry, 3. Therefore, the critical point is, because critical point means that value of x for which the factor is 0. This factor is 0 at 3. I don't have to make this, the help box. See, I'll tell you one thing. It will be 0, greater than positive for any values of x. Why? Just I'll tell you. Just listen in. Think of any number more than 3. Let's take anything more than 3. Let's take 4. What is 4 minus 3? Positive. The square of positive number, it is positive only. Think of any number less than 3. If you take any number less than 3, let's take 2. 2 minus 3 is negative. What is square of negative number? It is positive only. Actually, you don't require this particular part. ये चाहिए ही नहीं. ये जो part जो मैंने बताया ना, ये चीज चाहिए ही नहीं. क्योंकि यहाँ पे क्या है? x minus 3 का whole square. तो ये हम x का जो भी वैल्यू पुट करें
इसका आंसर मोर देन इक्वल टू 0 ही होगा। मैं सुनो एक बार बात ध्यान से, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x this expression is more than equal to 0. Am I true or not? Tell me. Because yes, very true that अगर हम x का जो भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसका रिजल्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, नंबर वन। नंबर टू, 3 पे ये 0 हो जाएगा, देखो 3 माइनस 3 0, सो 0 भी होगा और मोर देन 0 भी होगा, मतलब कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा। सो हम लोग लिखेंगे ऐसे, इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, दैट्स ऑल, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ये जो पार्ट है, नहीं पार्ट यहाँ जरूरत ही नहीं था, क्योंकि मैं एक्चुअली पहले बता दिया समझाने के लिए तुम लोग को। तुम अगर शो करो तो दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं है कि तुम शो करेगा तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज जस्ट लिसन हियर, लिसन मी एवरीवन, अगर मान लो मैं ये स्टेप शो भी करता हूं तो गलत क्या है, कोई गलती नहीं है यहाँ पे, बिकॉज 3 से बड़ा कोई भी नंबर हम यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे 4, 4 माइनस 3 इज 1, 1 का स्क्वायर इज पॉजिटिव, 3 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, जैसे 0, 0 माइनस 3 इज माइनस 3, उसका स्क्वायर 9 आएगा जो कि पॉजिटिव है, तो रिजल्ट 3 से लेस पे भी पॉजिटिव होगा, 3 से मोर पे भी पॉजिटिव होगा, और 3 पे क्या हो जाएगा, 3 पे क्या हो जाएगा, 0, so no problem, it is true, this holds true for all, this is the symbol for all x belongs to R, capital R means real numbers, तो सारे numbers, real numbers means you know सारा numbers, यानी complex number में भी ये चीज समझाएगा तुम लोग को, is this clear? Okay, copy it first. Now I will explain you number 8. 8 you will try, I will not explain, you will try first. एक बार मैं नंबर 8 बता देता हूँ, जिन लोग को समझ में नहीं आ रहा, ओके, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई विल एक्सप्लेन देयर नंबर 8, ओके, जस्ट नोट डाउन हियर, प्लीज नोट डाउन दैट रूम इज लॉक्ड, आज मैंने रूम लॉक रखा है बिकॉज ऑफ सम रीजन, ओके, सिक्योरिटी पर्पस, और मेक श्योर दैट कि रूम को अगर कोई सपोज एग्जिट हो जाए और अगर वो नहीं एंटर कर पा रहा है तो मुझे एक बार बता देना, कोई मेरे को कन्वे कर देना, मैं वहां से अनलॉक करके मैं उसको वापस एंटर कर दूंगा, ओके, सो नोट डाउन हियर नंबर 8. नाउ नंबर 8 में क्या है देखना एक बार, सबसे पहला स्टेप राइट साइड 0 होना चाहिए, वो है। सेकंड स्टेप x का हाईएस्ट पावर का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं है यहाँ पे, so let us multiply the left side and right hand side both by negative sign. If you do so, sign of inequality will change from less than to greater than, and if it was greater than, it will change to less than, number 2. Next, let us factorize. Here you will find that you are not able to factorize, I think. You are not able to factorize. Check once. नहीं होगा factorize. Check कर लो एक बार तुम. Factorize नहीं हो पाएगा. So क्योंकि ये factorize नहीं हो रहा है, तो हम लोग कैसे करेंगे ये सब? ध्यान देना. We have x square plus 2xy plus y square is x plus y का whole square, and x square minus 2xy plus y square is x minus y का whole square. ये two formula.
Now try to understand everyone very carefully. First of all, अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, तुम अगर दोनों फॉर्मूला में ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या बताओ तुम, 1 है कि नहीं? 1 बताओ तो एक बार, यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे सपोज 2 होता तो हम क्या करते, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को 2 से डिवाइड कर देते। यहाँ पे 2 नहीं है, 1 है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड। एक्स स्क्वायर के बाद अगर प्लस होता है तो ये फॉर्म में आ जाएगा, माइनस होता है तो ये फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर के बाद जो एक्स वाला टर्म है वो पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब इस फॉर्म में लाने का हम लोग कोशिश करेंगे। नाउ लिसन वेरी वेल एवरीवन, इट इज वेरी सिंपल टू एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म। आई विल जस्ट टेल यू द मेथड। मुझे इस पर्टिकुलर टर्म को देखो एक बार, इस पर्टिकुलर टर्म को मुझे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? मुझे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है 2 into x into y के फॉर्म में। मतलब 4x को मुझे स्प्लिट करना है तीन चीज का प्रोडक्ट में। We have to express 4x as a product of three factors. One is 2, other is x. Third thing is not known to us. तीसरा चीज हम लोगों को पता नहीं है। तीसरा चीज क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तीसरा चीज हम लोगों को पता नहीं है। समझ में आया तो बात? तो मुझे 4x को एक्सप्रेस करना है 2 into x into y के फॉर्म में। 4x को 2 into x into y के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो 2 into x हमेशा लिख देना। y क्या नहीं पता तो देखो सिंपल चीज, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे हम लोग, x कैंसिल हो जाएगा तो y क्या मिल जाएगा? 2। मतलब 4x को हम लोग किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 into x into y, और y का वैल्यू क्या है? 2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x square plus 2 into x into y, and what is y? Y is 2. If you are not sure that what you have done is right or wrong, if you have 1% confusion also, you can make your confusion clear. How? इस पूरा को सॉल्व कर लो, अगर ये आ जाए मतलब करेक्ट है। देखो करेक्ट है। अब इस फॉर्म में देखिए अगर हम लोग, तो x स्क्वायर प्लस 2x y है, तो y क्या है? 2 है। 2 into x into y 2 है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग? y का स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग? y का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐड किया है तो मुझे इसको हटाने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज आई कैन नॉट चेंज द एक्सप्रेशन, सो एज आई हैव एडेड आई हैव टू सब्ट्रैक्ट आल्सो। नाउ आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज x plus 2 का होल स्क्वायर। why? because x square plus 2xy plus y square is x plus y का होल स्क्वायर। माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? -2, और प्लस 5 कितना हो गया? +1। Now in the previous, now ये हो गया कितना आ गया? एक बार हम प्रीवियस से कंपेयर नहीं करते, पहले एक बार देखते। ना एक बात बताओ, सबसे पहला चीज, ये एक्सप्रेशन कभी भी, ये वाला पार्ट कभी भी नेगेटिव हो सकता है? बताओ, ये पार्ट कभी भी नेगेटिव हो सकता है? रिप्लाई इन यस और नो। टेल मी, कोई भी x के वैल्यूज पे कभी भी ये नेगेटिव हो सकता है? बताओ, कभी नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये एक्सप्रेशन अगर कभी नेगेटिव नहीं होगा और यहाँ पे +1 है, तो क्योंकि ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट, तो पॉजिटिव +1 विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? टेल मी। पॉजिटिव। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इज ट्रू। ट्रू मतलब क्या? ये एक्सप्रेशन इज मोर देन 0, मतलब ये ट्रू मतलब दिस एक्सप्रेशन इज मोर देन 0 और ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। क्लियर? इज दिस ओके एवरीवन? मतलब कोई भी x का वैल्यू पुट करे, कोई भी रियल नंबर्स पुट करे, यहाँ पे इवन -2 भी पुट करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पता है क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि -2 + 2 0 हो जाएगा, लेकिन 0 + 1 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। समझ में आया बात? लेकिन वही अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है, मतलब फैक्टराइज करके इतना आता है, तो कोई बता सकता है कि फिर आंसर क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स होता है या कुछ और चीज सोचना पड़ता? तुमको बताओ तो। यस, एक्सेप्ट -2। क्लियर एवरीवन? सी, देखो ध्यान से देखना एक बार, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा और 0 भी होगा, कोई भी रियल नंबर्स पे। क्यों? -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 क्या हो जाएगा? 0। और -2 से क्या अलावा हम नेगेटिव और कुछ भी, नेगेटिव -2000 -9999, एनीथिंग आई पुट, result of this expression का square will be always positive. This expression be either 0 or positive. I can say this way: 0 + 1 is obviously more than 0, and positive +1 is more than 0. Had it been
x plus 2 whole square greater than 0, then the answer will be all real numbers except minus 2. Why except minus 2? Because at minus 2 plus 2 becomes 0. और ये एक्सप्रेशन किस पे 0 हो जाता है? minus 2 पे 0 हो जाता है. लेकिन हमको क्या 0 चाहिए? नहीं, हमको चाहिए x का वो सारा वैल्यूज जिसको पुट करने से इसका आंसर मोर देन 0 होगा. मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव. यस, होता ही नहीं एक्चुअली. अगर होता तो फिर वो वैल्यू भी नहीं होता ना, क्योंकि इक्वल टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता. मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम. ओके, बिकॉज इट कैन नॉट बी 0. हाउ इट कैन बी 0? दैट्स राइट, उसमें कुछ क्वेश्चन में गड़बड़. ओके, now after completing this sum, everyone will do sum number 9 also. Okay, 9 is a bit same as number 8. Okay, जो मैंने कंसेप्ट समझाया कि x स्क्वायर के आगे पॉजिटिव फिर 1 होना चाहिए, ये चीज का यूज करके एक बार नंबर 9 करो तो सब कुछ 9 कर लो. उसके बाद हम लोग नंबर will do number 13 and then number 17, 18. Then this exercise will be over. Okay. Okay, वाला सबको देखो. So we can write this as x square. You know, I said you divide LHS and RHS by 4 to remove this, to make this 1. Clear? Now we have to represent this in the form. See, I'll tell you one thing, this is a perfect square only, but okay, fine, let's use the same process. We have x square, then we have minus. इसका मतलब सेकंड फॉर्म. मतलब हमको x को क्या करना पड़ेगा? x को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. कैसे? 2 into x into, you don't know what is y, तो y क्या होगा? x कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2. समझ में आया तो बात? मतलब हम लोग x स्क्वायर माइनस x को 2 into x into y, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2. समझ में? इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग y का स्क्वायर ऐड करेंगे और y का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे. यू ऑलरेडी हैव 1/2. तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाए? आई एम सॉरी, मैं गलती से लिख दिया, डोंट गेट कंफ्यूज. ऐड किया 1/2 का होल स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट किया माइनस 1/2 का होल स्क्वायर. ये और ये तो कैंसिल हो गया. क्लियर? सो वी गॉट दिस मच. नाउ क्वेश्चन इज, for what values of x this expression is more than 0. So more than 0 means not even, I mean हम लोग को x का वो सारा वैल्यू चाहिए जिससे इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है. 0 भी नहीं, because you know what is 0? 0 is a neutral number. तो अगर बोला है more than 0 मतलब हमको वो सारा नंबर्स देना पड़ेगा जिसपे इसका रिजल्ट मोर, I mean पॉजिटिव होगा. So it is true for all x belongs to real number except half. हाफ छोड़ के, बिकॉज हाफ पे इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा. देखो, हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू 0. अगर यहाँ पे वही +2 होता है या +3 होता है तो कुछ और बात होता है. तब इसका आंसर ऑल रियल नंबर्स ही हो जाता है. क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो +2 होता सपोज यहाँ पे, तब तो ये क्या होगा? ये 0 भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 0 + 2 इज व्हाट? पॉजिटिव. बट यहाँ पे +2 नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट हाफ. नाउ नेक्स्ट आई से, हाँ बोलो.
एक बस हो गया, एकदम सही है। ये सेम ही चीज है एक्चुअली। मैं इसको एक प्रोसेस वाइज किया, अदरवाइज ये यहीं पे खत्म हो जाता है ये सम। टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर सो ओवर हियर होंगी, इतना करना ही नहीं। बट मैं एक प्रोसेस बताया कि ये सारा ये जो प्रोसेस है ये तुम बाकी समय भी अप्लाई करते हो और कुछ। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जीरो क्या है, हाँ हाफ पे ये जीरो जाएगा, इसीलिए हाफ छोड़ के बाकी सारे नंबर्स तुम्हारा आंसर। यस समवन सेड समथिंग बेटर, यस। लाइक चलिए नहीं कर सकते हैं लोग, लेकिन जैसे ये ना मैंने बताया कि बहुत लोग किया है। जैसे मैं बताया कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर जरूरी नहीं है कि ये हो, तो मैंने क्या किया एक प्रोसेस बता दिया। प्रोसेस को फॉलो करोगे तो तुमको इजीली इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओगे। आई अंडरस्टैंड माय पॉइंट और नॉट। सी अगर इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो फायदा क्या है, ये एक प्रोसेस है, तुम अपना दिमाग लगाओ बुद्धि लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्रोसेस को फॉलो करने से फायदा क्या होगा कि तुम्हारा चीज आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। जैसे मान लो ये इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो पहले क्या करो 3 से डिवाइड करो, हो गया। उसके बाद इस चीज को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब 2/3x को 2 × x × y के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो y क्या होगा, x कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, क्या हो गया y 1/3। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x² + 2 × x × 1/3 लिख सकते हैं। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट, लाइक इफ यू यूज दिस प्रोसेस तो क्या होगा, इस प्रोसेस से तुम कोई भी सम को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो और कुछ और कोई रीजन नहीं। अगर वो पूरा दिख रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है तो इतना झमेला करने का क्या जरूरत है। जैसे नंबर 5 वाज वेरी मच क्लियर दैट इट इज x - 3 होल स्क्वायर, इज आल्सो क्लियर, बट आई एक्सप्लेन यू। ये एक मेथड से बताया कि तुम लोग कोई भी सम कर पाओ और कुछ नहीं था इसका रीजन। ओके नेक्स्ट, आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट नंबर। you can ask a teacher. Now the next sum is question number 13. So एक बार क्वेश्चन नंबर 13 देखना, इसके बाद इसका फाइनल आंसर मैं बताऊंगा, पहले तुम लोग सॉल्व करो। See, you have got two inequalities. See, I want everyone not to mix both the inequalities and solve it separately first. पहले सबको तुम लोग सॉल्व करो सेपरेटली, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ लास्ट में कैसे हम लोग दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, दैट आई एक्सप्लेन यू। बट बिफोर दिस डोंट मिक्स दिस विद दिस, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो तो एक बार फटाफट। मैं वेट कर। So if you solve, see
मैं सॉल्व देख कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग एक बार चेक कर लो। ठीक है, देखो तो यहाँ मेरा राइट है नहीं, मेरा चेक करो, तुम लोग अपना चेक करो। सो वी हैव द क्रिटिकल पॉइंट्स एज 2n माइनस 1। स्टेटमेंट ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको अलग से यहाँ पे अरेंज कर दो। ठीक है, हो गया इसका अलग। इसको आप देखते हैं। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट से 4n माइनस 1। अब ध्यान देना एक बार, ठीक है, ये तो हो गया। इसके हिसाब से सोल्यूशन क्या आएगा? इसके हिसाब से सोल्यूशन आएगा, हम लोग को x का वो सारा वैल्यू चाहिए जिससे इसका आंसर मोर देन जीरो। मोर देन जीरो का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। सो द आंसर इज x लेस देन 1 और x मोर देन 2। हम लोग को x का वो सारा वैल्यू चाहिए जिससे इसका आंसर क्या होगा? लेस देन इक्वल टू जीरो। लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहला चीज इक्वल टू जीरो, तो -1 और 4 पे, ठीक है, -1 और 4 पे क्या होगा? इक्वल टू जीरो। और उसके बाद लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। नेगेटिव किससे होगा? -1 से बड़ा, 4 से छोटा। तो मैंने इक्वल टू साइन यूज किया। देखो इसको कैसे कंबाइन करेंगे। हाउ टू कंबाइन बोथ द सॉल्यूशन। सी, इस दोनों को सॉल्यूशन को कंबाइन कैसे करेंगे, ध्यान दें। एक नया लाइन बनेगा, ठीक है, और सारा नंबर्स को एक लाइन पे अरेंज करें। अगर हम सारा नंबर्स को इस लाइन पे अरेंज करें तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -1। असेंडिंग ऑर्डर में, फिर हो जाएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4। हो गया? अब ध्यान देना एक बार, इसके हिसाब से इसके हिसाब से इसके हिसाब से ऑल द वैल्यूज ऑफ x लेस देन 1, ऑल द वैल्यूज ऑफ x मोर देन 2, इसके हिसाब से ऑल द वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, बट लेस देन इक्वल टू 4। ना कोई बता सकता है कि दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन कहां से कहां तक दिख रहा है? बताओ तो, ये जो लाइन है कहां से कहां तक कॉमन है, बता सकते हैं कोई? एंड का मतलब होता है नहीं, -1 से 4 तक नहीं, कॉमन। प्लीज थिंक एवरीवन एंड देन, वेरी गुड, वेरी गुड। ना ना देखो, ध्यान देना एक चीज है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सर्कल किया, इसको यहाँ पे देखो सर्कल किया। बताओ तो सर्कल क्यों किया, कोई बता सकता है? इसका सर्कल का रीजन क्या? वेरी गुड, बिकॉज -1 को इंक्लूड करना है। देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, मतलब -1 को इंक्लूड करना है। x लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब 4 को इंक्लूड करना है। समझ में आए? तो देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक ये तो कॉमन है ना, ये लाइन, ये लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कॉमन कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो कंबाइंड सॉल्यूशन क्या होगा? therefore the required solution is therefore the required solution is x more than equal to -1, less than 1, y less than 1, not equal to 1, 1 को include नहीं किया, और x more than 2, less than equal to 4. So this is the required solution. Okay, so this was question number 13, I think. Yes, okay, this is answer. Copy करो तो
Don't draw this one. You can draw this in the rough part. Okay, it's just for your understanding. It's not in the for the fair part. Now, question number 17, I'll explain. I'm erasing this. Everyone, have you copied? Do you have any doubt? Anything to ask here? Yes, anyone? कुछ पूछना है? So listen here. Now you cannot cross multiply. Okay, let me first complete the process first. Okay. So right hand side 0 होना चाहिए. तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए let us shift this term on the left hand side. And you cannot cross multiply. It is no term. I think you can remember this. We had done in quadratic also. और सपोज कोई नहीं किया होगा तो मैं वो एक बार वीडियो वापस से शेयर कर दूंगा. ठीक है, क्वाड्रेटिक वाला जो लास्ट पार्ट सेम टाइप के साथ. नेक्स्ट इसके बाद एलसीएम ले, इसको इसका हम लोग एलसीएम लेना पड़ेगा. यू हैव टू टेक एलसीएम हियर. We can simplify this and write it as 4x square minus 14x plus 12. उसके बाद याद होगा मैंने बताया था कि जो डिनोमिनेटर में जो भी है उसका स्क्वायर से लेफ्ट और राइट मल्टीप्लाई करना. डिनोमिनेटर का स्क्वायर से लेफ्ट साइड और राइट साइड में मल्टीप्लाई करना. Okay, so 0 into anything becomes 0. One factor gets cancelled. Are you understanding? एक factor cancel हो गया तो बचा यहाँ पे 4x square minus 14x plus 12 into in the bracket x square minus 4x plus 3. ना इन तीनों में से हम लोग अब फैक्टराइज करेंगे. हम लोग तो इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे. फैक्टराइजेशन, नॉर्मल फैक्टराइजेशन. तो ये कॉमन क्या है 2. तो फैक्टराइज करते हैं हम लोग. टू 6 is 12. So we have minus 4x minus 3x. I've written directly, okay? Everyone note down.
इसको मैंने डायरेक्ट फैक्टराइज करके लिख दिया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा ना। पहले x कॉमन लेते हैं हम, फिर -1 कॉमन लेते हैं, मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। इन दोनों में 2x कॉमन है, फिर इसको फैक्टराइज करेंगे तो x -2 2x -3। सो व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं यहाँ पे, बता सकते हो क्या क्या है यहाँ पे? यस, critical points are 2, 3/2. You understanding how I am finding? सबको 0 से इक्वलाइज कर दो और सॉल्व कर लो, x का वैल्यू मिल जाएगा 2, 3/2, 3 and 1। इन सबको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। पहले 1 आएगा, फिर 3/2, फिर 2, फिर उसके बाद 3। ना उसके लिए एक हेल्प बॉक्स बना लेना। अब हेल्प बॉक्स में कितना फैक्टर्स होगा? 2 into x -2, इसको एक ही ले लेते हैं। 2x -3, उसके बाद x -3, उसके बाद x -1। यस, हाँ, आई नो, हाँ हाँ, वो तो सही है, लेकिन इट्स बेटर लाइक तुमको प्रोसेस पता होना चाहिए, तो सीक्वेंस वाइज ही जाता है। दैट्स ट्रू, यू आर सीइंग करेक्ट। पहले भी जब मैंने क्वाड्रेटिक में बोला था तो मैंने बोला था प्लस होगा तो माइनस डिफरेंस, बट ये कर लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये लेवल में तुम लोग से एक्सपेक्ट किया जाता है, टीचर्स एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम लोग समझाए कि नहीं समझाए, तो ये प्रोसेस दिखाना जरूरी होता है क्योंकि मार्क्स कट सकता है। नाउ थिंक ऑफ एनी नंबर लेस देन 1, लेट्स टेक 0, नेगेटिव 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 नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, देखो सॉल्व करके क्या आएगा आंसर? पॉजिटिव। 1 और 3/2 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लेना, 1.1, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, चेक करें। So we are finding that it will go in this sequence, but in examination, please everyone note down that you show these steps, because at this level your teacher may expect that whether you have understood the logic or not, why it goes in this sequence. So that's why it's better you show the steps. तो मैंने अब डायरेक्ट लिख दिया। हम लोग को x का वो सारा वैल्यू चाहिए जिससे इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आना चाहिए? मोर देन 0 आना चाहिए। मोर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां से कहां तक आएगा? लेस देन 1 और 3/2 से बड़ा, लेस देन 2 और मोर देन 3। सो दीज आर द आंसर्स। हाँ, ना पूरा कर लेना, पूरा कर लेना। देखना, तुम बता रहे ना, तुम लोग कर लोगे तो क्या होगा? इजी रहेगा। मतलब तुम्हारा जैसे अगर मान लो कि सपोज तुम्हारा अगर सपोज मल्टीपल चॉइस वाला एग्जाम होता है, तब तो कोई बात ही नहीं है, तुम वो बनाओ मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम डायरेक्ट आंसर दे। बट वही अगर मान लो तुम्हारा सपोज अगर एग्जाम के लिए बुला लिया गया स्कूल में, तो ये सब स्टेप्स देखा जाएगा, नॉट जस्ट बिकॉज ए टीचर में चेक ओके कि तुमको ये प्रोसेस पता नहीं, वेदर यू हैव जस्ट लर्न दिस मेथड की प्लस माइनस प्लस होता है, कि तुमको ये पता है कि ऐसा होता है, इस तरह से ऑब्जर्वेशन से तुमको पता है, ये चीज तुम्हारा टीचर चेक कर सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू राइट एंड प्रैक्टिस दिस वे। So I hope you have understood this concept. So because क्योंकि ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में किया हुआ है, so बहुत कम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा ये चीज, बहुत कम क्या, सभी को आई थिंक। So this is the end of exercise 11C. Now 11A. Copy down first, everyone. I hope everyone is copying.
ओके, जस्ट टेल मी एक्सरसाइज ए जो है तुम लोग को एक क्लास में किया हुआ है, बताओ तो कि मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। यस टेल मी, किया है कोई क्लास में तुम लोग? डू यू रिमेंबर लाइक कहीं कोई क्लास में 8 में किया था शायद तुमने, 8 या 9 में? Solution set, find the solution set and represent it on a number line. Do you remember that part? अच्छा 10 में किया होगा, वही एकदम सेम है, क्लास 10 वाला ही एकदम सेम। So just note down, everyone take out your book and exercise 11 ये देखना एक बार। Solve the inequality. So and like मुझे solve करने में भी अजीब लग रहा है, इतना simple questions हैं, because ये सब तुम लोग को पता ही है, but क्योंकि syllabus में है तो I have to complete। एक होता ना ट्यूशन में, we have to do this whether it is easy or not, tough। So ये हम लोग को solve करना है inequality, और हम लोग को x का वो सारा वैल्यूज निकालना है। देखो एक बार, हम लोग को x का वो सारा वैल्यूज निकालना है जो नेचुरल नंबर हो। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। x को लेफ्ट में लेके आ जाओ, नॉर्मल इनइक्वालिटी जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 5। व्हाट आर ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 5? इट इज 1 2 3 4 and 5। सो दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल। ये बात सिंपल, बहुत सिंपल है, ये चीज करना है आप लोगों को। और उसके बाद तुम लोग को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने आता है ना, बताओ तो एक बार। x greater than 2 less than equal to 3 को जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज वी हैव 1 2 3 4 -1, तो बताओ तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? हाँ, यहाँ पे इस सम में x नेचुरल नंबर है, इस सम में यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है, रियल नंबर है, इसमें रियल नंबर है। हाँ, इसमें डीप डॉट डॉट देगा, इसमें बस सर्कल कर देगा, है कि नहीं? और बस एक लाइन ऐसे करके हाईलाइट कर देगा, है कि नहीं? इस तरह से किया जाता है ना तुम लोगों को। अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड्स भी होते हैं। बहुत लोग एकदम ऐसे करके एकदम पूरा शेड करते हैं, और इसमें सिर्फ सर्कल करना है। डू यू नो व्हाई इसमें सिर्फ सर्कल करना है? इसमें हम लोग को शेडेड सर्कल करना है, इसमें शेडेड सर्कल करना है इसके लिए, और इसके लिए बस एक सर्कल बस। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे टू इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, अगर मान लो x नेचुरल नंबर होता है और यहाँ पे सपोज ऐसा होता है x ग्रेटर देन 2 लेस देन 5, तो फिर नेचुरल नंबर के लिए क्या करते बताओ तो? यस एनीवन? बस 3 और 4 को क्या करते बताओ तो? बस d बस। तो ये मैं बोल रहा हूँ ना, 11 is just same as class 10, okay, that you have done in class 10। हाँ सेम। तो मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, एक बार ये करके आना। मैं होमवर्क देता हूँ, सारा मैं नहीं दूंगा, मैं भी मार्क करके भेज दूंगा तुम लोग क्या क्या करना, और जो डाउट्स होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड 11B लेट्स सी, हो सकता है माटीकरा में बोला गया है क्योंकि सिलेबस हो सकता है ना हो, तो तुम लोग को भी स्कूल में ना बोले, जब बोलेगा तो कर लेंगे। एंड बिकॉज वी हैव एम्पल टाइम, बिकॉज सब कुछ हो ही गया लगभग सिलेबस में, सिर्फ एक सेक्शन सी बचा हुआ है। और हम तुम लोग को जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।